उसके पहले CSS के जो टाइप्स है वो हमने देखे थे। उसके बाद क्लास आईडी, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। और आज जो देखने वाले वो है पोजीशन इन CSS। CSS के अंदर पोजीशन कंसेप्ट क्या रहती है, कोई ऑब्जेक्ट या कोई एलिमेंट उसकी पोजीशन कैसे सेट करने की, इसकी थ्योरी ये लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं। हाय गाइड्स, मुझे ये आशा है कि आपने क्लास आईडी और ग्रुप सेलेक्टर के प्रैक्टिकल किए होंगे। कुछ प्रॉब्लम्स है तो आप मुझे पूछ सकते हो। आज हम देख लेंगे पोजीशन इन CSS। बेसिकली इन HTML एलिमेंट के अंदर कोई एलिमेंट्स या कोई टेक्स्ट या इमेजेस, इसकी पोजीशन हम सेट कर सकते हैं। इसलिए पोजीशन या कंसेप्ट ये CSS के अंदर है। इसकी जो डेफिनेशन से ऊपर उन्होंने दी है, CSS help to position the HTML element. Using the CSS, we can set an element of HTML in specific particular space within in your web pages. Here use the position concept. The position property is used to set the position for element. Got it? The element can be positioned using top, bottom, left and right property. Then we use the position concept in your documents. The position can be set as top in page, या bottom, left, या right. Okay, so here use these are property which top, bottom, left and right. Syntax of position property. A similar syntax as a CSS. So first define the selector, then opening the selector means your any HTML element या class ID या group selector. Then position. A position is an attribute. A position is a property of CSS. The position colon value, then define the value, and then define the property of position like top, left, bottom या right. Top colon, then define the value, how many distance you want, and this distance define instead of value. The value must be defined in pixel. Then here end with the semicolon, then closing brace. Here the value in position are fixed, absolute, relative, and value of top, bottom, left, right are in pixel. It means that a position value are, we can define the fix, you can define the absolute value, we can define the relative value, and also define top, bottom, left and right value, but value must be defined in pixel. Basically there are four type of positions, या positions property, या positions value. First is static position.
second, fixed position, third, relative position, and fourth is absolute position. There are four types of positions. The first position property, a value, static position. Basically, in HTML document, this is default position, a default position. It is not defined, yeah, it not affected by top, bottom, left and right property. यहाँ पर आपको टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट प्रॉपर्टी आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है. स्टैटिक वैल्यू इज अ डिफॉल्ट पोजीशन फॉर HTML एलिमेंट. सेकंड, फिक्स पोजीशन. क्लियर हो गया. स्टैटिक पोजीशन एक डिफॉल्ट पोजीशन रहती है, बाय डिफॉल्ट पोजीशन है HTML एलिमेंट के लिए, और जब आप इसका यूज करेंगे तब आपको टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट प्रॉपर्टी डिफाइन करने की जरूरत नहीं. नॉट नेसेसरी. You can define the top, bottom, left and right properties. Second value is fixed position. This property help to put the text fix on the browser. ब्राउजर के अंदर कोई टेक्स्ट को आपको फिक्स सेट करने का है. टेक्स्ट हो सकता है या कोई इमेज भी हो सकती है, तब आप फिक्स पोजीशन का यूज कर सकते हो. फिक्स पोजीशन का मेन पर्पज क्या है? टेक्स्ट या इमेजेस उसको ब्राउजर के अंदर कोई स्पेसिफिक जगह पर आपको सेट करने का है. Here use the fixed position. The fixed element will not be moved even when the page is scrolled. The fixed element will not move to another location. जब आप फिक्स पोजीशन का यूज करते हो तब इसके अंदर जो एलिमेंट्स रहते, एलिमेंट में भी टेक्स्ट या इमेजेस या टेबल या whatever element, those cannot move to another location या another location in your page. Even when the page is scrolled, जब आप पेज को स्क्रॉल भी करेंगे हॉरिजेंटली या वर्टिकली, द एलिमेंट हैज फिक्स. एलिमेंट ये आपके फिक्स रहते, या आप दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते. उसके लिए आपके पास है फिक्स पोजीशन. थर्ड जो है रिलेटिव पोजीशन. द रिलेटिव पोजीशन प्रॉपर्टी is used to set the element relatively to its normal positions. रिलेटिव पोजीशन एक ऐसी पोजीशन रहती है जो आपको एलिमेंट सेट करने का है. वो एलिमेंट्स आपका नॉर्मल जो पोजीशंस रहती है उससे रिलेटिव आ सकता है या नज़दीक आ सकता है. उसको आप टॉप में ले सकते हैं, या वो जो नॉर्मल एलिमेंट्स रहता है उसको आप नीचे ले सकते हैं, लेफ्ट साइड, राइट साइड. We can move the relative element to top, left, right and bottoms, but this element is depend on a previous HTML tag. ये जो एलिमेंट है ये डिपेंड रहता है. जब आप रिलेटिव पोजीशन का यूज करते हो तब उस वेब पेज के अंदर जो HTML के जो टैग रहते हैं उस टैग थ्रू ये रिलेटिव पोजीशंस आपकी सेट होती है. नेक्स्ट है उसके बाद एब्सोल्यूट पोजीशंस. ज़्यादा से ज़्यादा वेब पेज के अंदर ये पोजीशन का ज़्यादा यूज होता है. दिस प्रॉपर्टी सेट एन एलिमेंट इन स्पेसिफिक लोकेशन एंड इट इज नॉट अफेक्टेड बाय फ्लो ऑफ पेज. जब आप ये जो प्रॉपर्टीज है, ये जो वैल्यू है एब्सोल्यूट, कोई पर्टिकुलर लोकेशन पर कोई एलिमेंट आपको सेट करने का है तब आप एब्सोल्यूट पोजीशन का यूज कर सकते हो. ये किसका मेन पर्पज है. क्लियर.
उसके बाद देख लेंगे एब्सोल्यूट पोजीशन के अंदर ही आता है आपका फ्लोट प्रॉपर्टी। द फ्लोट इज CSS प्रॉपर्टी। फ्लोट भी आपकी एक CSS की प्रॉपर्टी है, कोई एलिमेंट को आपको सेट करने का है, जैसे कि लेफ्ट साइड पर राइट। फ्लोट इज CSS प्रॉपर्टी रिटन इन CSS फाइल या डायरेक्टली इन स्टाइल ऑफ एलिमेंट। ये जो फ्लोट प्रॉपर्टी है, एक तो आप इंटरनल CSS के अंदर इसका आप यूज कर सकते हो एंड इट डिफाइन आफ्टर द स्टाइल टैग। एंड देन जो एक्सटर्नल CSS है, एक्सटर्नल CSS के अंदर भी आप फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो। क्लियर? तो ये जो फ्लोट प्रॉपर्टी है ये डिफाइन होती है एब्सोल्यूट पोजीशन के अंदर। अब ये जो प्रॉपर्टी है इसके भी तीन वैल्यू है। फ्लोट कोलन लेफ्ट, लेफ्ट साइड को सेट हो जाएगा। फ्लोट कोलन राइट, द एलिमेंट हैज सेट टू राइट साइड इन पेज। एंड फ्लोट कोलन नन, आपको नहीं करने का है, हियर यूज द नन वैल्यू। क्लियर? इसलिए देर आर फोर टाइप ऑफ positions value. First, static positions. This position is a default position in HTML element and it not affected by top, bottom, left and right property. Second, fixed position. You can set the element of fix on the browsers. When we define the fixed positions, element not move when your page is scroll horizontal or vertical. Third is relative position. We can set a relative element to its normal positions and it depend on the HTML tag. Next, and oftenly used in these positions in web page, absolute position. Basically, this property is specially set in a specific location in your web page. Web page के अंदर कोई particular location पर it can be set. In absolute positions, here define the float property. Basically, there are in float property used in three type of CSS: external, inline and internal CSS. Basically, the float property has three values: left, right and none. You can set a element, if you want set the element in left side, here define the left. You can set element in right side in web page, here define the right. And float colon none, remove the left and right side. Got it? आ गया समझ में? ये चार पोजीशन के टाइप है। उसके बाद देख लेंगे फ्लोट प्रॉपर्टी होने के बाद और एक प्रॉपर्टी है, उसका नाम है डिस्प्ले प्रॉपर्टी। The display property in CSS define how the component are going to be placed on web page। जैसे कि डिस्प्ले प्रॉपर्टी का मतलब ये रहता है, जब आप वेब पेज के अंदर कोई कंपोनेंट का यूज करते हो, जैसे कि डिवीजन, हाइपरलिंक, हेडिंग, ये जो टैग रहते हैं, ये जो एलिमेंट का जब आप यूज करते हो, ओके, कोई पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर कोई टेक्स्ट या इमेजेस आपको प्लेस करने की है, तब आप डिस्प्ले प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो। यहीं पर उन्होंने दिया है, द डिस्प्ले प्रॉपर्टी इन CSS डिफाइन हाउ द कंपोनेंट्स आर गोइंग टू बी प्लेस ऑन द वेब पेज। वेब पेज के अंदर कोई कंपोनेंट को आपको प्लेस करने का है, जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, कोई डिवीजन के अंदर उसको आपको सेट करने का है,
तब आप डिस्प्ले प्रॉपर्टी का वहीं पर यूज कर सकते हो। इट स्पेसिफाई हाउ द एलिमेंट इज डिस्प्ले, यहीं पर आपको डिफाइन करना पड़ता है कहाँ पर वो एलिमेंट आपको डिस्प्ले करने का है। इट स्पेसिफाई, इट डिफाइन हाउ द एलिमेंट डिस्प्ले। ओके, यह सिंटैक्स ऑफ डिस्प्ले प्रॉपर्टी का सिंटैक्स भी बहुत इजी है। डिस्प्ले कोलन वैल्यू, जो आपको वैल्यू चाहिए वो वैल्यू भी इसकी फिक्स रहती है। वेयर द वैल्यू आर, कौन कौन सी वैल्यू है ये भी हम देख लेंगे। पहले जो वैल्यू है वही इनलाइन। इट इज यूज टू डिस्प्ले एन एलिमेंट एज इन इनलाइन एलिमेंट, कोई एलिमेंट, कोई पार्ट, उसी के अंदर कोई एलिमेंट को आपको डिस्प्ले करने का है। जैसे कोई वेब पेज है, या वेब पेज का कोई पर्टिकुलर पार्ट है, और उसी पार्ट के अंदर कोई एलिमेंट को हमें डिफाइन करने का है, तब आप इनलाइन का वहीं पर आप यूज कर सकते हो। ब्लॉक, इट इज यूज टू डिस्प्ले द एलिमेंट एज ब्लॉक एलिमेंट, ब्लॉक एलिमेंट में कोई एलिमेंट आपको डिस्प्ले करने का है, तब आप ब्लॉक ये वैल्यू का वहीं पर यूज कर सकते हो। इट स्टार्ट ऑन न्यू लाइन एंड टेक अप द होल वेट ऑफ द ब्राउजर विंडो, न्यू लाइन पर ये आता है आपका, और ब्राउजर की पूरे वेट को डिफाइन करता है। इनलाइन का मतलब विद इन द एलिमेंट, और ब्लॉक का मतलब कोई पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर कोई आपको डिस्प्ले करने के इंफॉर्मेशंस, तब आप ब्लॉक का आप यूज कर सकते हो। और एक न्यू लाइन के अंदर या न्यू लाइन से ये आपका डिस्प्ले होता है। ब्लॉक इनलाइन, दिस वैल्यू इज वेरी सिमिलर टू इनलाइन एलिमेंट, जो इनलाइन एलिमेंट है आपका, इनलाइन एलिमेंट जैसे ही उसका वर्क है, बट डिफरेंस इज दैट यू आर एबल टू सेट विड्थ एंड हाइट। देख लीजिए, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ब्लॉक इनलाइन के अंदर वो जो एलिमेंट है, उस एलिमेंट की आप विड्थ और हाइट सेट कर सकते हो। तो ब्लॉक के अंदर वैसे नहीं होता, वो होल विड्थ को सेट करता है। तो ब्लॉक इनलाइन के अंदर आप उसकी विड्थ और हाइट सेट कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका नन, जो ऊपर आपने जो एलिमेंट्स दिए, वैल्यू दी है, उसको आपको कैंसिल करने का है, तब आपके पास नन है। जैसे कि आपने देखा फ्लोट प्रॉपर्टी, फ्लोट प्रॉपर्टी के 3 वैल्यू, फ्लोट कोलन लेफ्ट, फ्लोट कोलन राइट एंड नन। उसी तरफ से ये आपकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी है। कोई पर्टिकुलर जगह पर वेब पेज पर कोई एलिमेंट को आपको डिस्प्ले करने का है, तब आप डिस्प्ले प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो। एंड डिस्प्ले प्रॉपर्टी हैज 4 वैल्यू, इनलाइन, ब्लॉक, ब्लॉक लाइन एंड नन। और इसका जो सिंटैक्स है, डिस्प्ले कोलन वैल्यू, जो आपको वैल्यू चाहिए। सो फर्स्ट वैल्यू इज इनलाइन, कोई एलिमेंट को आपको जहां पर आपने वो सेट कर दिया है उसी के अंदर आपको डिस्प्ले करने का है, तब इनलाइन। ब्लॉक, कोई पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर आपको एलिमेंट को सेट करने का है, इसकी जो बिगनिंग रहती है न्यू लाइन से होती है, और पूरे ब्लॉक में ब्लॉक की जो विंडोज रहती है वहाँ पर जो आपको इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करने की है वो आप कर सकते हो। ब्लॉक इनलाइन का जो वर्क रहता है वो इनलाइन एलिमेंट जैसे रहता है, बट इसके अंदर आप विड्थ और हाइट ये सेट कर सकते हो, और नन से जो आपने 3 वैल्यू दी है उसको आपको रिमूव करने का है, तब आप नन आपके पास रहता है। ऐसे ये डिस्प्ले प्रॉपर्टी की वैल्यू है। क्लियर? तो ये जो मैंने आपको बताया कौन कौन से, पोजीशन, ओके, तो पोजीशन की 4 वैल्यू है, स्टैटिक, फिक्स
रिलेटिव, एब्सोल्यूट। पोजीशन का मेन पर्पज क्या है? जो HTML के जो एलिमेंट, HTML के अंदर कोई टेक्स्ट या इमेजेस उसको आपको सेट करने का है, तब आप पोजीशन का प्रोग्राम के अंदर आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। और इसकी ये 4 वैल्यू, स्टैटिक, फिक्स, रिलेटिव और एब्सोल्यूट। क्लियर? फिक्स, फिक्स रखने का है। जब आप इसका यूज करेंगे तब वो जो एलिमेंट रहता है आपका फिक्स रहता है, उसको आप मूव नहीं कर सकते। रिलेटिव, रिलेटिवली जो नॉर्मल पोजीशंस रहती है उससे रिलेटिव, टॉप साइड या बॉटम साइड, टॉप साइड या बॉटम साइड वो टेक्स्ट या इमेजेस आपकी मूव होती है या आपको करने की है। जैसे 3D टेक्स्ट में या जो 3D इमेजेस रहती है उसके अंदर भी आप रिलेटिव पोजीशन का यूज कर सकते हो। सबसे जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है वो है आपका एब्सोल्यूट एलिमेंट। कोई स्पेसिफिक लोकेशन, पर्टिकुलर जगह पर यू कैन सेट टेक्स्ट या इमेजेस यूजिंग द एब्सोल्यूट पोजीशंस। एब्सोल्यूट के अंदर आप फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो। एब्सोल्यूट के अंदर आपके पास दो प्रॉपर्टी है, वन इज फ्लोट प्रॉपर्टी एंड सेकंड इज डिस्प्ले प्रॉपर्टी। फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज करके आप वो जो एलिमेंट्स जो आपको वेब पेज के अंदर दिखाने का है उसकी आप अलाइनमेंट्स लेफ्ट साइड को चाहिए या राइट साइड को चाहिए वो आप डिफाइन कर सकते हो। और नहीं चाहिए तब आप नन ये वैल्यू का यूज कर सकते हो। और इसका जो यूज रहता है, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज आप तीनों ही CSS के अंदर कर सकते हो, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। सेकंड जो प्रॉपर्टी है एब्सोल्यूट के अंदर वो डिस्प्ले प्रॉपर्टी, एलिमेंट को डिस्प्ले करने का है। कहाँ पर डिस्प्ले करने का है? वेब पेज के अंदर। यह 4 वैल्यू थ्रू डिफाइन कर सकते हो। फ्लोट जैसे इसका सिंटैक्स है, डिस्प्ले लिखने का, कोलन और वैल्यू डिफाइन करने की। और 4 जो प्रॉपर्टी है, पहले इनलाइन, ये भी बहुत इजी है, जहाँ पर आपने डिफाइन किया है उसी के अंदर वो आपका डिस्प्ले होता है। ब्लॉक, कोई ब्लॉक के अंदर आपको डिफाइन करने का है, और जब आप ब्लॉक का यूज करेंगे तब पूरे ब्राउजर के अंदर यहीं पर आप विड्थ और हाइट सेट नहीं कर सकते, इतना भी आपने याद में रख दिया तो बहुत हो गया। और जो ब्लॉक इनलाइन जो है वो इनलाइन जैसे वर्क करता है, पर इनलाइन के अंदर आप क्या कर सकते हो, कोई एलिमेंट के विड्थ और हाइट सेट कर सकते हो। जैसे वेबसाइट के अंदर आप देखते हो ना, कोई पर्टिकुलर जगह पर कोई इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही है और नन जो एलिमेंट आपने यूज किए उस एलिमेंट को आपको कंप्लीटली रिमूव करने का है। एलिमेंट का मतलब ये जो वैल्यू आपने डिफाइन की है, इनलाइन ब्लॉक, ब्लॉक लाइन, ब्लॉक इनलाइन, ये आपको नहीं चाहिए तब आप यहीं पर नन का यूज कर सकते हो। तो ऐसी ये थ्योरी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसका प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। इसके पहले भी मैंने बहुत सारे बच्चों को कॉल किया है, आप वीडियोस देखिए, क्योंकि जब तक आप वीडियोस नहीं देखते तब तक मैं क्या पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में कुछ भी आने वाला नहीं है। इसलिए आप बिगिनिंग से वीडियो देख लीजिए। जो डाउट्स आपको होंगे वो आप मुझे पूछ सकते हो। और नेक्स्ट वीक से मैं आपकी फिजिकल बैचेस स्टार्ट कर रहा हूँ। और ये जो फिजिकल बैचेस रहेंगे, आपके जो क्लासेस है, जैसे कि इंटेलेक्ट है तो इंटेलेक्ट की अलग बैच रहेंगी, जाजूस है तो जाजूस की अलग बैच रहेंगी, या किसी का भागवत हो सकता है तो उसकी अलग बैचेस आपकी रहेंगी। 2 ही दिन बैचेस रहेंगे, सैटरडे और संडे। सैटरडे के दिन आपको जो टाइमिंग सूटेबल है वो टाइमिंग में आप आ सकते हो,
और संडे के दिन भी जो आपको टाइमिंग सूटेबल है उसमें आप आ सकते हो। ये जो बैचेस है 2 ही दिन बैचेस है और 2 घंटे की ये बैचेस रहेंगे, इसलिए अभी तक एकदम बेसिक से भी फिजिकल बैचेस में स्टार्ट करने वाला हूँ और जो बच्चों को कोई डाउट्स होंगे वहीं पर भी आप पूछ सकते हो। और उसके बाद आपकी जो एग्ज़ाम्स है वो एग्ज़ाम में भी अप्रैल या मई में आपकी हो सकती है, इसलिए आप बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए और ये जो HTML है इसके आप प्रैक्टिकल कीजिए, क्योंकि 10 मार्क के प्रोग्राम्स एग्ज़ाम के लिए आते हैं और अभी तक मैंने जो आपको पढ़ाया है ओके उसी टाइप के प्रोग्राम्स रहते हैं, इसलिए ये 10 मार्क आपके कन्फर्म्स है जिनको अच्छी तरह से समझ में आ गया हो। क्लियर? और आपकी जो एग्ज़ाम्स है वो ऑनलाइन ही होने वाली है। ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम जो पैटर्न्स है वो भी मैं आपको आज बताने वाला हूँ। 100 मार्क की जो एग्ज़ाम्स है ये 100 में से 80 मार्क की थ्योरी है और 20 मार्क का प्रैक्टिकल्स रहता है। और 80 मार्क की जो थ्योरी रहती है ये 80 में से 60 मार्क की ऑब्जेक्टिव के रहते हैं, जिसमें फिल इन द ब्लैंक, ट्रू या फॉल्स, उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सिंगल सेलेक्ट करना, डबल सेलेक्ट करना, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और 80 में से 60 ऑब्जेक्टिव के लिए और जो 20 मार्क जो रहते हैं ये 20 मार्क में से 10 मार्क के प्रोग्राम्स रहते वो HTML के ऊपर ही रहते और जो 10 मार्क रहते उसके शॉर्ट आंसर वहीं पर आपको लिखना पड़ता है। क्लियर? इसलिए स्कोरिंग के लिए IT बहुत इजी है। पर कब इजी है? जब आप उसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिकल्स करेंगे, कोई डाउट्स होंगे आप मुझे पूछ लेंगे, नहीं तो आपने कुछ भी नहीं किया तो यहाँ पर मार्क अडप्ट करना थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है। इसलिए स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अच्छे मार्क यहीं पर आपको मिल सकते हैं। वीडियोज आप देख लीजिए ओके। और जिन स्टूडेंट की फीस बाकी है उनको रिक्वेस्ट है आप फीस पे कीजिए। बहुत सारे बच्चे ने फीस पेड की है, बहुत सारे बच्चे की फीस बाकी है ओके, क्योंकि अभी हमारा पहला ही चैप्टर चल रहा है, क्योंकि बाद में हमें थोड़ा और फास्ट यहीं पर लेना पड़ेगा। और सभी बच्चों को रिक्वेस्ट है आप वीडियो देख लीजिए ओके। थैंक यू।